Hello and welcome back, dear students. Welcome to Kaisopur. In today's video, we will be just discussing some of the questions left over in the last video. In the last video, we discussed, I guess, the 20 questions from the KLP 15 recently conducted, which is generally meant for NEET students. In today's video, we will be just discussing some questions 23 onwards. The very first question that we have is the refractive index of glass is 1.520 for red light and 1.525 for blue light. Delta 1 and delta 2 be the angles of minimum deviation for red and blue light respectively in a prism. Okay, we know, actually dear students, what is being asked in this question is that refractive index is different for different colors. We know actually mu is different for different colors. So delta 1 is signifying the refractive index for red. So delta 1 equals to mu. What's the refractive index for glass for red color? That is 1.520 minus 1 multiplied by A. This is for red. And for blue light, it is delta 2 is for blue light, and that is 1.525 minus 1 multiplied by A. In the prism of this glass, the glass is not changed at all. Now quite obvious, this value actually is greater than this. So quite obviously delta 2 is greater than delta 1. So delta 2 being greater than delta 1, and this seems to be the correct option. Because ये वाली value ज़्यादा है comparatively to this. Rest all the things are same. Prism change नहीं हुआ तो A भी change नहीं होगा. Now this is the question. The ratio of the angle of minimum deviation for a thin prism with respect to air and when dipped in water. Okay, इस क्वेश्चन को जब देखिए डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए, दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फाइन, अगर मैं एयर की बात करूं, फॉर एयर आई कैन राइट डेल्टा एज इक्वल्स टू relative, that is 3 divided by 2 minus 1 multiplied by A. That comes up to be 0.5. 3 by 2, that's 1.5 minus 1, that comes up to be 0.5 multiplied by A for air. Now in the same context, if we will check what is being asked, when the same glass prism or thin prism is dipped in water. देखिए इस क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका ये है, जब आपने इसी प्रिज्म को इसमें वाटर में डिप किया तो लाइट जो आएगी पहले वाटर में जाएगी फिर गिलास में चली जाएगी. नाउ फॉर वाटर आई विल राइट refractive index of water with respect to glass, because light is coming from water going to glass. Now just let me change the color. So that comes up to be mu of glass with respect to air divided by mu of water with respect to air. This is the way how we define relative refractive index. Actually this is absolute, और जब हमें relative refractive index define करना हो, that we denote glass with respect to water, relative. Now what is the refractive index of glass with, that's actually mu g by mu a. This is mu w by mu a, that is given. This is given as 3 divided by 2 and this is given as 4 divided by 3. So this comes up to be 9 divided by 8. Now we just have to use this formula, delta equals to 9 divided by 8 minus 1 multiplied by a. So this comes up to be 1 divided by 8 multiplied by a. Now we are being asked इन दोनों का ratio, right? So what we will write, delta of thin prism with respect to air and when dipped in water, air divided by water, that comes up to be 1 by 2 of a. 0.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं लिख दूंगा 1 divided by 8 of a. Fine.
सो ए से ए कैंसल, सो दैट कम्स अप टू बी, अगर हमें निकालना है डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा ए, तो दैट कम्स अप टू बी 1 डिवाइडेड बाय 4, राइट। ये 4 आ जाता है, लेकिन हमें डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा ए निकालना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, ABC is a small angled prism with the angle 1.5 made up of material of refractive index P. A ray of light is incident as shown in the adjoining figure. If the angle of deviation for the ray reflected from the mirror M with respect to the incident ray, okay, यहाँ पे जो deviation angle है of the reflected ray with respect to the incident ray, that means is 180. That means जो angle of deviation है वो 1 degree है, right? So delta is 1 degree. That is important. And what we are supposed to calculate is mu. A should be given, A is also given. So बड़ा ही simple है, delta equals to mu minus 1 multiplied by A. Delta is given as 1 equals to mu, that's 1.5 minus 1 multiplied by A. Fine. अब sorry, it's not mu, mu तो निकालना है. It is mu over here. A is 1.5. So 1 divided by 1.5 equals to mu minus 1. So 1 divided by, चलो इसको डायरेक्टली लिखते हैं, 10 divided by 15 plus 1 as mu. So that comes up to be 25 divided by 15, 5 divided by 3 as mu. तो mu की वैल्यू जो आ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो 5 divided by 3. That is the correct option. Now moving to the next question. The next question is, a ray of light is incident normally on one face of the right angled isosceles prism. It then grazes. अच्छा, grazes में जब भी होगा तो normal, जब हम grazing reflection पढ़ते हैं normal के साथ 90 degree, right? We know it should go along the axis. Grazes the hypotenuse, the refractive index of the prism is. देखिए हम एक isosceles prism pick करते हैं like this way. यहाँ से रे आ रही है, राइट? सो इट्स बीइंग आस्क्ड, इट्स देन ग्रेजेस. अब इस का नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज के, क्योंकि इट ग्रेजेस along the hypotenuse. Grazes the hypotenuse का मतलब होता है the ray is going like this. This is called as grazing reflection or grazing refraction. Fine. तो यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लूँ तो ये वाला एंगल होगा हमारा 45, ये वाला एंगल भी होगा हमारा 45 डिग्री. नाउ दिस इज कॉल्ड एज ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब हमसे पूछा है, जब ग्रेजिंग हो तो हमें पता है म्यू जो होता है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे ही 90 डिग्री पे ये बैंड हुआ, वो तो हमने TIR में भी पढ़ा है. So that comes up to be mu as equal to 1 divided by किस एंगल पे ग्रेजिंग हुआ, sin 45 पे, sin 45. तो sin 45 किसके बराबर, तो 1 by रूट 2. तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी रूट 2. तो रूट 2 में तो नहीं है बट हमें पता है दैट इज 1.414 होता है रूट 2 की वैल्यू, एंड दैट कम्स अप टू बी करेक्ट ऑप्शन. तो ग्रेजिंग, ग्लैंसिंग, इन कॉन्सेप्ट्स का हमें पता होना चाहिए. Now we do have the beam of white light gives a spectrum on passing through a hollow prism. No. देखिए dear students, this is the noteworthy point. अगर कभी भी हमारा प्रिज्म जो होगा वो हॉलो होगा तो हॉलो प्रिज्म से कभी भी जो है डिस्पर्जन नहीं होता है, राइट? तो उसमें से कभी भी डिस्पर्जन नहीं होगा. तो पहला पॉइंट तो गलत है, राइट? सेकेंड पॉइंट इज स्पीड ऑफ लाइट आउटसाइड द प्रिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पीड. नो, अगर यहाँ पे भी एयर है और ये हॉलो है, यहाँ पे भी एयर है, तो दोनों की स्पीड तो सेम है ना. जब दोनों की स्पीड सेम है, ए भी गलत है, बी भी गलत है, राइट? सो बोथ ए एंड ट्रू, नो, और ए इज ट्रू, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स. ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. डिस्पर्जन होने के लिए द प्रिज्म इज नॉट सपोज्ड टू बी हॉलो, क्योंकि मीडियम चेंज होगा. देखिए जब लाइट एंटर होगी ना तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है. अब यहाँ दोबारा एयर मिला तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही नहीं, डिस्पर्जन तो होगा ही नहीं.
Now the de Broglie wavelength of light, the de Broglie wavelength of the electron accelerated through a potential difference is directly proportional to v to the power n. अच्छा इन्होंने v to the power n, then n must be equal to, देखिए लैम्डा जो होता है वो हमें पता है that is actually equal to 2m mass of electron multiplied by v. तो हमें इनमें रिलेशन पूछा है तो द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by root v. So I can write it as lambda is directly proportional to v 1 by 2. So lambda is directly proportional to v minus 1 by 2. तो n की वैल्यू जो आ रही है -1 by 2, -1 by 2 मतलब 0. -0.5. So this seems to be correct option. Now this is the question. The figure shows the variation of the stopping potential with the frequency v. Okay, ये stopping potential है और ये incident frequency है of the three different materials M1, M2, M3, जिनकी वर्क फंक्शन phi1, phi2, phi3 रेस्पेक्टिवली है. देन देखिए ये मटेरियल M1 है, ये मटेरियल M2 है, ये मटेरियल M3 है. M3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, इसका मतलब अगर मैं बात करूं M3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, लाइक इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी, इसका मतलब इसकी वर्क फंक्शन ज्यादा होगी. क्वाइट ऑब्वियसली जो phi3 होगा वो ज्यादा होगा phi2 से, वो ज्यादा होगा लाइक दिस वन phi1 से. तो phi3 ग्रेटर देन phi2 ग्रेटर देन phi1. फाइन. यहाँ पे हमें देखना है दिस इज द ग्राफ विद फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली द मेजर ऑफ हियर इन एनर्जी. एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा. इफ वी रिक्वायर मोर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हमें ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन चाहिए था इस पर्टिकुलर मेटल के लिए. क्यों चाहिए था? रीजन इसकी वर्क फंक्शन ज्यादा होगी. तो phi3 greater than phi2 greater than phi1. Now we do have the question, the electron with rest mass m0 moves with the speed 0.8 c. Its mass when it moves with this speed is, देखिए हमें इनवेरियंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए. आइंस्टीन ने ये कहा था कि जब एक बॉडी रेस्ट पे होती है उसका मास डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू व्हेन द बॉडी इज मूविंग. सो व्हेन अ बॉडी एक्सेलरेट्स और व्हेन अ बॉडी मूव्स इट्स मास इंक्रीजेस. जब एक बॉडी किसी वेलोसिटी के साथ, राइट नाउ मैं रेस्ट पे हूँ तो मेरा एक डिफरेंट मास होगा, लेकिन जब मैं मूव करूंगा तो मेरा डिफरेंट मास होगा. वो कितना होता है वो हमें पता है, दैट इज एक्चुअली कोरिलेटेड बाय दिस इक्वेशन 1 minus v square divided by c square. तो m नॉट इज माई रेस्ट मास राइट नाउ, m इज द रिलेटिविस्टिक मास जब मैं मूव कर रहा हूँ विद द वेलोसिटी v. अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है जिसका रेस्ट मास m नॉट है, अब ये मूव कर रहा है विद द स्पीड 0.8 ऑफ c, जो इसका v है दैट इज 0.8 c. अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा गया है कि इसकी स्पीड, इसका मास कितना होगा. फाइन, वी आर बीइंग आस्क्ड व्हाट इज इट्स मास. देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं. लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन ओवर हियर. m इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर कितना है, v कितना है दैट इज 0.8 c स्क्वायर. ऐसे लिख सकते हैं c स्क्वायर. सो वी विल गेट m as equal to m naught under root of c square minus 0.8 c square, right, divided by c square. So m as equal to ये 0.8 0.64 होता है. 1 माइनस 0. c स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, 0.8 0.8 0.64, 1 माइनस 0.64 वो 0.36, रूट ऑफ 0.36 कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा m नॉट डिवाइडेड बाई 0.6. ये मैंने डायरेक्ट कर लिया, एक्चुअल में ये ऐसा आएगा 1 माइनस 0.864, वो आ जाएगा 0.36. जब इसका रूट ले लेंगे दैट इज 0.6, और 0.6 कब होता है? दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3 m नॉट. 5 डिवाइडेड बाई 3 m नॉट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. Now we do have the photo cell connected in electric circuit. I hope ये question clear होगा. थोड़ा सा blur है at a distance d from the source of light. As a result, current I flows in the circuit. What will be the current in the circuit if the distance is reduced to d by 2? देखिए ये डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड भी क्वेश्चन है. जो करंट है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर.
ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक सेल फोटो इफेक्ट में डिटेल में पढ़ा है। अब हमें पता है जो नया डी है ना, दैट इज रिड्यूस टू d/2। तो जब डी स्क्वायर था तब इंटेंसिटी आई थी, अब जो नई डिस्टेंस है ना वो d/2 कर दी गई है। तो जब नई डिस्टेंस d/2 कर दी गई है तो आई किसके बराबर होगा, 1 डिवाइडेड बाई d/2 होल स्क्वायर। सो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई सॉरी 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई डी स्क्वायर, ऐसे राइट। 1 बाई डी किसके बराबर है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू आई। सो ये बन जाएगा 4 टाइम्स आई। एक्चुअली मैंने क्या किया, ये डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 को ऊपर ले गया। सो वी शुड नो दिस करेक्ट लाइक द वे हाउ टू सॉल्व दिस। सो इसका आंसर जो होगा वो 4i होगा। फाइन, नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज E, C and V represent the energy, velocity and frequency of the photon. Which of the following represents its wavelength? तो बड़ा ही सिंपल है, एनर्जी होता है h न्यू, एनर्जी होता है, वेवलेंथ के टर्म्स में पूछा है c डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, hc डिवाइडेड बाय e। लैम्डा निकलेगा hc डिवाइडेड बाय e, so that is the correct option. Now moving to this question, the work function of the metal is 4 electron volt. Work function given है 4 electron volt to emit photo electrons with zero velocity. Okay, we just want the velocity to be zero. इसका मतलब होता है कि जब इस मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होगी, इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर निकल के वहीं रुक जाएंगे। दे विल नॉट गिव गेट एन एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी जो आइंस्टीन्स इक्वेशन के हिसाब से होती है। तो हमें कितनी वेवलेंथ चाहिए, ओके तो हम आइंस्टीन्स इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, h न्यू इज इक्वल टू नथिंग बट वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जीरो है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, तो ये पूरी टर्म जो है वो जीरो है। तो हमें कितनी वर्क फंक्शन गिवन है, हमें व्हाट वी आर सपोज टू गेट द वेवलेंथ। तो मैं इसको एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू ये कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वी कैन राइट लैम्डा एज h into c. We know why we have solved this, that is actually 12400, रफली इतना होता है क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर है। सो दैट कम्स अप टू बी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड कर दिया, सो दैट कम्स अप टू बी रफली 3100। सो आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर इतना ही आ जाएगा क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर है, वी कैन जस्ट यूज दिस वैल्यू। और ये याद रखना आपको, लैम्डा जो होता है ना वो 12400 डिवाइडेड बाय एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, और लैम्डा जो होता है दैट इज 1240 इन नैनोमीटर, राइट। ओके, नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, द फोटो electric threshold wavelength of silver is this much. The velocity of the electrons ejected from the silver surface by the ultraviolet radiation of the wavelength 2536, h की वैल्यू गिवन है इतनी and c की वैल्यू गिवन इतनी है। so what we are supposed to calculate the velocity. okay, जो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है ना डियर स्टूडेंट, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, डी ब्रॉगली की इक्वेशन, रिलेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन इन वेरियस टर्म्स लाइक पोटेंशियल के साथ रिलेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेशन क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट के साथ क्या रिलेशन है, बस वो इंपॉर्टेंट है। और यही आइंस्टीन्स इक्वेशन बार बार इस्तेमाल होगी। और जो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट है जिसमें मल्टीपल ग्राफ्स आ जाते हैं, चाहे वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का हो चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का हो, तो वो ज्यादातर इसमें जो ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस इसी में से आ जाते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस 1/2 mv स्क्वायर। व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट, वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे वेवलेंथ के टर्म्स में तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड प्लस 1/2 mv स्क्वायर। सो वेलोसिटी स्क्वायर में ऐसे लिख सकता हूँ एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 1/2। चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछिए। so what we are going to get, let's solve it over here. hc को कॉमन निकालिए, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा, 2 को साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, m को डिवाइड कीजिए, 2hc
तो हमने इसको यहीं पे सॉल्व कर दिया। 2hc बाय m 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इक्वल्स टू v स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है? v की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2hc डिवाइडेड बाय m इंटू 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। फाइन। तो 2 की वैल्यू एज सच, h की वैल्यू तो गिवन है, c की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू गिवन है। m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज 9.1 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 31। 1 by lambda is given as this much, और थ्रेशोल्ड इतनी है 1 by lambda नॉट। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज सॉल्वेबल क्वेश्चन, you will get the answer. Now moving to this question, the proton and alpha particle have same de Broglie wavelength. What is same for both of them? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लैम्डा जो होता है ना वो h डिवाइडेड बाई p होता है। अगर मैं लिखूं लैम्डा ऑफ अल्फा दैट इज h बाई p ऑफ अल्फा। लैम्डा फॉर प्रोटॉन इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई मोमेंटम फॉर प्रोटॉन। क्वेश्चन में कहा गया है कि दे हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा ऑफ अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। रीजन h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, तो दोनों का मोमेंटम सेम होगा, दोनों का मोमेंटम सेम होगा। नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन, ये तो डायरेक्टली हमें पता ही है कैडमियम ही होगा। रीजन ये कि डज नॉट एमिट बाय विजिबल लाइट। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। फोर स्पेक्ट्रल रीजन्स, among the following four spectral regions the photon has the highest energy in। देखिए एनर्जी जो होता है वो h न्यू होता है, दैट इज E इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो जिसका लैम्डा लीस्ट उसकी एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, अब हमसे किसका पूछा है? द फोटोन हैज हाईएस्ट एनर्जी। तो अगर हम वेब गियर की बात कर लें, ठीक है, वेब गियर की बात कर ले तो रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम, एनर्जी मिनिमम। वायलेट की वेवलेंथ मिनिमम तो एनर्जी मैक्सिमम। तो यही होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। सो let's see is there any other question. The other question is neglecting the variation of mass with the velocity, the wavelength associated with the electron having kinetic energy is proportional to। देखिए जो लैम्डा होता है ना दैट इज एक्चुअली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट टू मास काइनेटिक एनर्जी। फाइन, ये तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली। सो लैम्डा इज h बाय m ke रूट माइनस 1/2। खत्म क्वेश्चन, तो यहीं पे यही आ रहा आंसर। कैसे? देखिए लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ke टू द पावर 1/2। रूट को ke 1/2 लिख सकते हैं। अच्छा इन्होंने ke के बदले e लिखा, दैट्स ke माइनस 1/2। ऐसा ही क्वेश्चन अभी भी आया था, तो ये क्वेश्चन आंसर होगा इसका। Now we do have this question. Light of two different frequencies whose photons have energy 1 electron volt and 2.5 electron volt respectively successively illuminate a surface of work function 0.5। surface change नहीं हो रही है, only the different frequency is being changed। the ratio of maximum speeds is, पहले हम इस केस में निकालेंगे जो maximum, the ratio maximum speed कितनी होगी। तो we will write h nu equals to h nu naught। चलो इसके बदले में वर्क फंक्शन लिख दूं डायरेक्टली, प्लस 1/2 मास इनटू वेलोसिटी मैक्सिमम का स्क्वायर। तो इसकी एनर्जी कितनी गिवन है क्वेश्चन में? लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हुज फोटॉन्स हैव एनर्जीज, डायरेक्टली एनर्जी ही गिवन है 1 माइनस, इसको इधर ले आइए वर्क फंक्शन को, दैट इज 0.5 इक्वल्स टू 1/2 m v max स्क्वायर। दिस इज फॉर द केस नंबर 1। केस नंबर सेकंड में अब हमने उतनी फोटोन जिसकी एनर्जी कितनी है 2.5, तो फॉर सेकंड अगर मैं लिख दूं, सो आई विल राइट 2.5 minus 0.5 equals to 1/2 m v max square। फाइन, सो दिस कम्स अप टू बी 0.5। चलो डायरेक्टली इधर सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 1 v max स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 1/2 m v max स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। तो ये इन दोनों को इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए।
So what we are going to get is 1 divided by 2m v max square divided by 1 by 2 v max square. This is for 1, this is for 2, that is 0.5 divided by square 2. So ye cancel. So v max square, v max of 1, v max 1 का square divided by v max 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4. तो जब स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो रूट बन जाएगा, तो v max of 1 divided by v max of 2, that comes up to be 1 divided by 2. So ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. यहाँ पे गलती नहीं करनी है कि we are not supposed to conclude over here. यहाँ से आगे हमें ले जाना है क्योंकि स्क्वायर रूट ले जाना, क्योंकि 1/4 भी ऑप्शन है, तो 1/2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. So these were some questions. I think यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है. we do have one more question over here. The photoelectric threshold for the certain metal is, the photo threshold energy कितनी है, threshold wavelength कितनी है, 3000 Armstrong, right? if the radiation इतनी है, fine. देखिए एनर्जी, अगर वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा. अगर इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग है, अगर हम इससे कितनी भी छोटी वैल्यू दे दे, चाहे 2000 दे दे, 2999 दे दे, तब भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे. और हमने कितनी रेडिएशन इंसिडेंट करा दी, 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग. हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं इसको कितनी एनर्जी निकालनी है या कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है. तो हमने वेवलेंथ को घटाया, इसका मतलब हमने इंसिडेंट एनर्जी को बढ़ाया. अगर इफ वी हैव इंक्रीज द इंसिडेंट एनर्जी, दैट मींस द इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड. तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एमिट हो जाएंगे. सो दीज वर सम क्वेश्चंस. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. So in case there will be any doubt, you can just let us know in the comment section. I wish you all the very best for the upcoming exams. Thank you.